Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of machine design. So today we'll discuss the design of the helical gear. So what is a helical gear? इसको हम discuss करते हैं the various types and how this gear is different from the spur gear. A helical gear has the teeth in the form of helix around the gear. So when we talk about the helical gear, the teeth are again perpendicular to the base but they are basically inclined in the form of a helix. जैसे आपके स्क्रू के ऊपर उसके जो थ्रेड्स हैं वो helix की फॉर्म में या स्पाइरल की फॉर्म में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है उसके ऊपर वूंड हुए होते हैं. Same like that, a helical gear basically have the teeth in the helix form. Here you can see that these teeth are basically inclined. They are not straight, or you can say that these teeth are not parallel to the axis of rotation of the gear. They are basically inclined to the axis of rotation. Two such gears may be used to convert two parallel shafts in place of a spur gear. So when you have to connect two parallel shafts, the basic gear that is used is known as a spur gear. So in place of a spur gear, you can also use a helical gear for the power transmission purpose if you have two shafts which are basically parallel to each other. The helix may be right-handed on one gear and left-handed on the other. And you can see that the trajectory of these two gears which are basically meshing with each other is different. So a one meshing gear have a trajectory which is based on the right hand, the next corresponding may have the left hand side. The pitch surfaces are cylindrical in the spur gearing, but the teeth, instead of being parallel to the axis, wind around the cylinders helically like screw threads. So in the helical gears, uh, as different from the spur gear, जो इनके अंदर टीथ्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते इसकी शाफ्ट के, और ये इन प्लेस ऑफ पैरेलल ये हमारे पास इंक्लाइंड होते हैं. The teeth of a helical gear with the parallel axis have line contact as in the spur gearing. So ये क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे और जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो होगा एक लाइन कांटेक्ट. This provides a gradual engagement and the continuous contact of the engaging teeth. That is basically the beauty of these helical gears. हेलिकल गेयर हमेशा नॉइज और वाइब्रेशन को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनके इंक्लाइंड होने की वजह से जब ये टीथ आपस में मैश होते हैं तो इनकी जो मैशिंग होती है वो ग्रेजुअल होती है. अगर हम स्पर गियर को देखें तो दो जो टीथ है अक्रॉस बी यानी कि जो फेस विड्थ है उस पूरी की पूरी के अक्रॉस जो है एट अ सिंगल इंस्टेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाएंगे, फिर डिसंगेज होंगे, फिर इंगेज होंगे, फिर डिसंगेज होंगे, फिर इंगेज होंगे. तो इस डिसंगेज और इंगेज होने की वजह से जर्क या आपके पास जो है नॉइज या वाइब्रेशन जो है वो पैदा होती है. तो वो सारी एप्लीकेशन जिनके अंदर जो है आपने इन सारे एलिमेंट्स को मिनिमाइज करना होता है, यू विल यूज द हेलिकल गियर. अब हेलिकल गियर में क्योंकि ये टीथ जो है ये इंक्लाइंड है, तो जैसे जैसे टीथ जो है वो मूव करता जाएगा या आपका जो गियर है वो रोटेट करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी इंगेजमेंट का पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा, और ये जो इंगेजमेंट होगी टीथ के साथ रोटेशन के अराउंड ये ग्रेजुअल इंगेजमेंट होगी. इस ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस इंगेजमेंट की वजह से जो है आपके पास नॉइज और वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाएंगे, और एक ग्रेजुअल चेंज के अंदर सडन से फर्क ही है, एक सडन चेंज में आपके पास नॉइज या आपके पास जर्क आ सकता है. सो इसमें आपके पास सडन इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट नहीं है. हियर यू हैव द ग्रेजुअल इंगेजमेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेजुअल engagement, the function that they are providing is basically power transmission, and that power transmission is noiseless and continuous. The helical gears give the smooth drive with the higher efficiency of transmission as compared to the spur gear. So ये सारे की सारी चीज़ें इसकी gradual engagement की वजह से, ठीक है. So that is basically some of the properties which makes the helical gears more suitable as compared to the spur gear, ठीक है. So again they are application dependent.
कि जो एप्लीकेशन होगी आपकी उस हिसाब से जो है वी डिज़ाइन एंड यूज़ द gears. We have already discussed previously that the helical gears may be of helical, single helical type and the double helical type. ये आपने जो स्लाइड नंबर 1 के अंदर गियर देखे हैं इनके अंदर सिंगल हेलिक्स है, सारे के सारे जो है एक ही एंगल के जो है टीथ हमारे टिल्ट हैं। बट इन दिस यू कैन से दैट फॉर हाफ ऑफ द पर्सन आपके पास राइट है, आपके पास इसका हीलेक्स जो है उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये आपके पास डबल हीलेक्स है, यानी कि स्टार्ट से आपका टीथ इंक्रीज होगा, फिर मिडल पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट और फिर जो है वो डिक्रीज हो रहा है उसी ट्रेंड के साथ। तो इनके अंदर डबल हीलेक्स है। In case of single helix gears, there is some axial thrust between the teeth, which is a disadvantage. ये एक बड़ी important चीज़ है। When we engage the helical gears, because of that gradual engagement, आपके जो teeth हैं वो एक दूसरे के साथ मैश होते जाएंगे और जैसा लास्ट पॉइंट आएगा उसका आपकी जो इंगेजमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। शुरू में हमारे पास पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा और वो लाइन में कन्वर्ट होगा और एट द एंड पॉइंट ऑफ द टीथ वो लेंथ जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो जब इंगेजमेंट हमारे पास ग्रेजुअली बढ़ जाएगी और अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आ जाएगी उसके बाद जो है एक एक्सियल थ्रस्ट जनरेट हो जाएगा, यानी क्या वी हैव टू बेसिकली रोटेट टू शाफ्ट। हम पावर ट्रांसमिशन के हवाले से एक शाफ्ट को दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं ताकि रोटेशन ऑफ द वन काजेज द रोटेशन ऑफ द अदर, और हमें जो है इसके अंदर एक्सियल थ्रस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सियल थ्रस्ट क्या है कि शाफ्ट जो है अपने एक्सिस के अलॉन्ग आगे को मूव करते हैं, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। सो उस चीज़ को लिमिटाइज करने के लिए वी हैव बेसिकली डबल हेलिक्स टाइप हेलिकल गियर। इनमें क्या होगा कि हम उसको उस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचने ही नहीं देंगे, यहाँ से हेलिक्स इंक्रीज होता जाएगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा। सही है, तो वो सारी एप्लीकेशन जिनमें हमें एज अ डिसएडवांटेज एक्सियल थ्रस्ट मिल रहा होता है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए we'll use the double type helix gear. In order to eliminate this axial thrust, double type helical gears are used. इन gears को जो है double helix gear को जो है वो Herrington gears का नाम भी दिया जाता है। It is equivalent to two single helical gears in which equal and opposite thrusts are provided on each gear and the resulting axial thrust is zero. इन डबल टाइप हेलिक्स गियर की ब्यूटी ही है कि जब आपका जो गियर है उसके अंदर एक्सियल थ्रस्ट जनरेट होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी पेरीफेरी के ऊपर हेलिक्स बढ़ रहा है आपके पास और ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो जिस डायरेक्शन में आपके पास थ्रस्ट जनरेट हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट पहुँचने के बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो हेलिक्स जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरह से होगा हमारे पास तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का वो जीरो होगा, बिकॉज दीज टू फोर्सेस विल बी ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से जो है एक्सियल थ्रस्ट जो है वो हमारे पास जीरो हो जाए एंड दैट वाज अ नॉन डिजायरेबल प्रॉपर्टी। इसको जो है वो हेलिकल गियर के अंदर जो है वो हेरिकॉन गियर्स को या डबल हेलिक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा के हम मिनिमाइज कर सकते हैं। Now the terms which are used in the helical gears, there are some terms that were related with the spur gear that we have learned last time. So today we'll discuss some of the terms which are related with the helical gears. First is basically the helix angle. आपके पास कोई भी स्क्रू हो उसका हमेशा एक हेलिक्स एंगल होता है जिसके ऊपर जो है वो थ्रेड उसके ऊपर बाउंड हुआ होता है। इसी तरह इन गियर्स के अंदर भी देयर इज एन हेलिक्स एंगल इन देयर। अब ये वो एक एंगल है जो सेंट्रल आपके एक्सिस से ये सेंट्रल शाफ्ट से आपका टीथ जो है वो कितना इंक्लाइंड है, दैट इज बेसिकली द हेलिक्स एंगल। सो इट इज अ कांस्टेंट एंगल मेड बाय द हेलिसेस विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अगर आप एंड के ऊपर देखें, इफ दिस इज द shaft or these are the teeth which are inclined to this shaft, so this is the angle alpha which they are making with this shaft and this angle is known as the helix angle alpha. उसके बाद है हमारे पास axial pitch. Pitch मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, pitch is basically the difference between two mark points. So there are different kinds of pitches like normal pitch, axial pitch. Now we'll discuss both of them. So what is axial pitch? It is the distance parallel to the axis
between the similar faces of the adjacent teeth. आपके दो टीथ जो हैं उनके दरमियान का जो फासला है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द दैट इज बेसिकली पैरेलल टू द एक्सिस इज नोन एज द एक्सियल पिच. एक्सियल पिच जो है दैट इज डिनोटेड बाय पीसी. तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टीथ जो है एक्सिस के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है और सेम करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट जो है वो ये है. तो इस पॉइंट से लेके नीचे वाले टीथ के सेम पॉइंट तक का जो फासला है upon the axis that is known as the axial pitch. It is same as the circular pitch. Circular pitch भी इसी चीज का नाम है. That is why we denote axial pitch by PC because that sign is for the circular pitch. The axial pitch may also be defined as the circular pitch in the plane of rotation of the diametral plane. So next property is the normal pitch. अब जब हमारे पास टीथ इंक्लाइंड है तो उनकी जो पिच होगी वो भी इंक्लाइंड होगी. अब इंक्लाइंड टीथ के दो टीथ के दरमियान का जो फासला होगा दैट इज नोन एज द नॉर्मल पिच. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन टीथ एंड दिस वन इज द सेकंड टीथ, सो द डिस्टेंस और द गैप बिटवीन दीज टू टीथ will be the normal pitch. So it is the distance between the similar faces of the adjacent teeth along the helix on the pitch cylinders normal to the teeth. अब जो इसका नॉर्मल बन रहा होगा बिकॉज ये टीथ है हमारे पास और ये टीथ इंक्लाइंड है. सो जो इनका नॉर्मल बन रहा होगा ये मैं आपको पेंट के अंदर खोल के बताता हूँ इसका और उसका फर्क क्या है. चले अब ये मेरे पास एक सीधी लाइन, इसकी जो पिच है वो क्या है, दिस ये जो डिस्टेंस है अंदर का दिस इज बेसिकली द पिच. अब अगर मेरे पास ये इंक्लाइंड लाइन है, अब अगर इस लाइन की हम बात करते थे इसके ऊपर जो नॉर्मल होता था वो ये था परपेंडिकुलर. तो अगर ये लाइन आपके पास टिल्टेड या इंक्लाइंड लाइन है तो उसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा ना परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन. तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपका दरमियान का डिस्टेंस बन रहा होगा दिस इज बेसिकली Pn या इसको नॉर्मल पिच कहते हैं. और एक्सियल पिच क्या होगी, वो पॉइंट या जो एंड पॉइंट जिनके ऊपर आके जो है हमारा एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं ये पॉइंट और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी हमारा डिफरेंस बन रहा है दैट इज बेसिकली एक्सियल पिच और द सर्कुलर पिच. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन PC एंड PN. Now the normal pitch is denoted by Pn. The normal pitch may also be defined as the the circular pitch in the normal plane, as I have told you in the paint also, which is the plane perpendicular to the teeth. Because normal is always perpendicular, so इनका जो आपस के अंदर रिलेशन है Pn is equal to PC cos of alpha. So that is how normal pitch is related with the axial pitch. Pn यानी कि नॉर्मल पिच इज इक्वल टू cos अल्फा टाइम्स ऑफ द एक्सियल पिच, यानी कि cos ऑफ द हेलिक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय द एक्सियल पिच. The next thing is the face width of the helical gear. In order to have more than one pair of teeth in contact, the tooth displacement, the advancement of one end of the teeth over the other or the overlap should be at least equals to the helix pitch. ये एक चीज़ है आपकी हेलिक्स गियर के अंदर प्रॉपर्टी है जिसको ओवरलैप का नाम दिया जाता है. ओवरलैप क्या है, एट अ टाइम आपका एक से ज़्यादा टीथ जो है वो इंगेज होंगे दो गियर्स के. कौन से गियर, दो हेलिकल गियर. ये आपको अगर यहाँ पे आप देख सकें इस scenario में, so in that case there are more than one teeth which are basically in contact at a single time. So इस तरह के केसेस में क्या होगा, we have to define a property that is known as the overlap, and this overlap is equal to PC. आपके पास ये आपके पास PC क्या है, एक्सियल पिच. एक्सियल पिच का फॉर्मूला ये होता है कि एक्सियल पिच इज इक्वल टू फेस विड्थ मल्टीप्लाई बाय tan of alpha. Here B is the face width and alpha is basically the helix area. So that is tan of alpha B. The normal tooth load Wn has two corresponding components. One is the tangential component Wt
and the other is the axial component WA as shown in the figure. इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो चलो नाउ आई होप यू कैन सी इट। सो एज हमारे पास यहाँ पे हेलिकल गेयर थे तो दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। नाउ द नॉर्मल इज दिस। सो ये आपके पास नॉर्मल लोड लग रहा होगा टीथ के ऊपर, दो पॉइंट्स को जब दो टीथ आपस के अंदर ज्वाइन करेंगे। सो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट which is a vertical component WT, and second is the horizontal component WA, which is basically the axial load. We have basically two components. अब इसके अंदर जो चीज़ important है, जो आपके पास axial load है या axial thrust है, उसको जो है वो हमने avoid करना है in case of a helical gear. So back to the normal mode now. As Wn has been resolved into two components Wt and the axial component Wa as shown in the figure. So the end thrust of the axial load Wa जिसकी हम बात कर रहे थे, that is sin of alpha Wn. ये इसका sin component है, और जो आपके पास Wt होगा वो क्या होगा, वो आपके पास Wn का cos component होगा, इसके दो components हैं। So sin of alpha, अब Wn जो है उसको हम convert करेंगे into in the form of Wt. So that would be equals to Wt tan of alpha. So now we have taken the axial load in the form of normal load. Normal load के केस में इसका फार्मूला होगा Wn sin of alpha, और अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है into tangential load, so Wa is equals to Wt tan of alpha. From equation 1 we can see that helix angle increases when the tooth overlap increases. अगर आप इक्वेशन 1 की बात करें, इसमें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है अल्फा का विद PC। इसका मतलब क्या है कि ओवरलैप अगर आपने बढ़ाना है then you have to increase the helix angle as well, but at the same time the end thrust has given in equation 2 also increases। अब ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि जैसे जैसे आपका अल्फा हम बढ़ाएंगे हमारा ओवरलैप बढ़ जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टीथ का बढ़ जाएगा, मैचिंग अच्छी होगी, पावर ट्रांसमिशन बेहतर होगी। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है उससे एक्सियल लोड भी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक्सियल लोड है ये तो अनडिजायरेबल है इन दैट केस। इसका मतलब ये है कि नाउ वी हैव टू लिमिटाइज द एंगल अल्फा, कि उसको मैक्सिमम हम इतना बढ़ा सकते हैं, वरना उसके बाद जो है एक्सियल लोड इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जो है पावर लॉसेस हमें आना शुरू हो जाएगा। सो द एंड थ्रस्ट इज गिवन इन टू ऑल्सो इंक्रीजेस व्हिच इज अनडिजायरेबल। इट इज यूजुअली रिकमेंडेड दैट द ओवरलैप शुड बी 15% ऑफ द सर्कुलर पिच। ये हमारे पास हेलिकल गियर के डिज़ाइन के अंदर ये लिमिट दी गई है कि आप मैक्सिमम ओवरलैप जो है 15% कर सकते हैं टू द पिच का। तो ओवरलैप का फार्मूला क्या था, b इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। इसको मैक्सिमम आप बढ़वा सकते हैं 15% तक, सो इट विल बी 1.15 ऑफ द 1.15 टाइम्स ऑफ द PC। सो नाउ यहाँ से जो है आप फेस विड्थ निकाल सकते हैं, b वुड बी इक्वल्स टू, आप उसको इसके नीचे ले जाएं 1.15 इंटू PC डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा। अब PC जो है आपके पास पिच सर्कल पिच है या नॉर्मल पिच है, आप जो है इसको PC जो है हमारे पास सर्कुलर पिच है, आप इसको जो है मॉड्यूल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर डिज़ाइन के अंदर पिच सर्कल नहीं दिया हुआ, आपको मॉड्यूल दिया गया है सर्कल गियर का, so you can design this by putting the value of the module। so फेस वुड B जो है उसका फार्मूला हेलिकल गियर के केस में क्या होगा, 1.15 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल इनटू बाय डिवाइडेड बाय tan of alpha। so that is how face width of a helical gear has to be calculated। next is formative or equivalent number of teeth for the helical gears। The formative or the equivalent number of teeth for a helical gear may be defined as the number of teeth that can be generated on the surface of a cylinder
having a radius equal to the radius of curvature at a point at the tip of minor axis of an ellipse obtained by taking section of the gear in normal plane. अब इसका मतलब क्या है? Formative or the equal number of T's for the helical gear. These are basically the number of the T's that can be generated upon. अगर आप बात करते हैं किसी भी gear की, the things that are involved are a random circle, the random circle and the pitch circle. So the minimum circle is basically the base circle or the random circle. उस सर्कल के ऊपर यानी कि जितना हम सर्कल को छोटा करते जाएंगे और नंबर ऑफ टीज हमारे पास कम होते जाएंगे, जितना उसको बड़ा करते जाएंगे नंबर ऑफ टीज बढ़ते जाएंगे. तो उस छोटे से सर्कल के ऊपर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीज दैट कैन बी फॉर्मेटेड आर नोन एज द फॉर्मेटिव और द इक्वल नंबर ऑफ टीज. सो मैथमेटिकली formative or the equivalent number of teeth are given by TE. So TE is equal to T divided by cos cube of alpha. और T क्या होगा? एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स होंगे अपॉन द हेलिकल गियर जो आपको डिजाइन के अंदर गिवन होंगे. तो उसके फॉर्मेटिव और द इक्वल नंबर ऑफ टीथ जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ को डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर अल्फा के साथ और cos क्यूब अल्फा के साथ. एंड हियर अल्फा इज बिटवीन द helix angle. Proportions for the helical gear. These are some of the limitations that have been given for the helical gear as far as design considerations are. So you have to keep them in mind. Though the proportions of the helical gears are not standardized, yet the following are some recommendations by the American Gear Manufacturing Association. So this is a larger association that is known as AGMA, which is called American Gear Manufacturer Association. इस एसोसिएशन ने आपको कुछ गाइडलाइंस दी हैं. अपॉन दैट गाइडलाइंस यू कैन डिजाइन अ हेलिकल गियर. सो द प्रेशर एंगल जिसको हम फाई कहते हैं, जो स्पर गियर के केस में हमने भी देखा था. तो जो इसके बाद जो आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है या प्रेशर एंगल होता है, उसकी जो लिमिटेशन है फॉर द हेलिकल गियर इज 15 to 25 डिग्री. जब हीलिक्स की बात करेंगे, अल्फा एंगल की बात करेंगे, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं 20 डिग्री इंक्लिनेशन टू 45 डिग्री मैक्सिमम. यानी कि इंक्लिनेशन का जो एंगल होगा इन केस ऑफ हेलिकल गियर दैट वुड बी फ्रॉम 20 डिग्रीज टू मैक्सिमम 45 डिग्रीज. इससे बड़ा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं हो सकता. एंडेंडम जो मैक्सिमम हम इसके अंदर दे सकते हैं दैट इज 0.8 मीटर. 0.8 मीटर इज अ वेरी बिग वैल्यू एज फार एज gears are concerned. So dedendum के लिए जो minimum value होगी that would be 1 meter. Again that is a very big value. Minimum depth जो होगी इसकी that would be 1.8 meters. Minimum clearance जो होगी that would be 0.2 meter. And the thickness of the tooth that would be 1.5708 mm. ठीक है. So these are basically some of the proportions or the design considerations that have been given by AGMA, American Gear Manufacturer Association. Now again, as we have calculated last time, we have calculated the strength of the spur gear, same as you can calculate the strength of the helical gear. There is just one or two modifiers of the Levi's equation. So Levi's equation is basically the basic equation for calculating the beam strength or the tooth strength of the gear. So this Levi's equation also plays a role for calculating the strength of the helical gears also. So in helical gears, the contact between the matting teeth is gradual, starting at one end and moving along the teeth so that at any instant the line of contact runs diagonally across the teeth. Therefore, in order to find out the strength of the helical gear, a modified Levi's equation is used. So इसमें Levi's equation जो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा. इसमें आपके पास W2 जो टेंजेंशियल लोड जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू सिग्मा W, यानी कि वर्केबल आपके पास जो है स्ट्रेस वो आपके पास क्या होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा O मल्टीप्लाई बाय CV. ये वाला आपके पास दिस होल इज इक्वल टू सिग्मा W. सो अलाउएबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय कंप्रेशन फैक्टर या वेलोसिटी फैक्टर C. So sigma O multiplied by CV V pi m into y bar.
अब ये सारी की सारी क्वेश्चन सेम है, एंड में y की जगह पे हमारे पास y बार है। अब इनको देखते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। डब्ल्यू पी टेंजेंशियल टू लोड है, सिग्मा ओ लायबल स्टैटिक स्ट्रेस है, सी वी वेलोसिटी फैक्टर है, डी फेस विड्थ है, एम इसका मॉड्यूल है, and y dash is the tooth form factor or the Levi's factor corresponding to the formative or the virtual or the equivalent number of teeth। अब जब लास्ट टाइम हमने देखा था स्पर गियर के अंदर, सो y की जो डिपेंडेंसी थी दैट वाज अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ। इस केस में हेलिकल गियर में y डैश विल डिपेंड अपॉन द फॉर्मेटिव और द इक्वल नंबर ऑफ टीथ, तो हमें वो निकालने पड़ेंगे। इसलिए पिछली दो स्लाइड्स के अंदर जो है वो हमने फॉर्मेटिव टीथ का फॉर्मूला जो है उसको पढ़ा है। नाउ CV की वैल्यू जो है, these values of velocity factor are dependent upon the speeds or the velocities of the machine teeth. So CV would be equal to 6 divided by 6 plus B for the peripheral velocities ranging from 5 meters per second to 10 meters per second. When the velocities would be 10 meters per second to 20 meters per second, we have CV is equal to 15 divided by 15 plus B. And when the velocities are even higher than 20 meters per second, then we have the relation of CV is equal to 0.75 divided by 0.75 plus the root into V. And if we have non-metallic gears, then the formula for CV is 0.75 divided by 1 plus V plus 0.25. So that is how you can calculate CV. Now the dynamic tooth load. Dynamic tooth load is basically the product, the sum of WT plus WI. So WT का जो है Levi's equation वाला फार्मूला you will put here to calculate the dynamic load, plus WI जो है आपका उसकी जगह पे you have this relation 21 into B. B is basically the tangential velocity into B आपके पास फेस विड्थ है, C आपके पास कांस्टेंट है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस WT cos ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है आपके पास, हेलिक्स एंगल, डिवाइडेड बाय 21 into B plus under root BC cos square alpha plus WT, where V, B and C have usual meanings as discussed in the square gear। ये सारे के सारे आपके पास वही है, वेलोसिटी, फेस विड्थ और आपके पास वेलोसिटी फैक्टर या कांस्टेंट है। Now the static tooth load or the endurance strength WS जो है static tooth load के केस में डिवाइस इक्वेशन हमारे पास होती थी। यहाँ पे सिर्फ जो है आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती थी, अलायबल से वो इंड्योरेंस लिमिट आ जाती थी या इलास्टिक स्ट्रेस आ जाता था। सो WS इज इक्वल टू सिग्मा E B phi M into y bar। एंड द वियर लोड जो थर्ड चीज़ थी डिज़ाइन के केस में, आपका डायनामिक लोड था, स्टैटिक लोड था और वियर लोड था। तो वियर लोड जो होगा वो अगेन इक्वेशन इज सेम एज इन केस ऑफ स्क्वायर गियर, दैट इज dp into dq डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा। और ये आपके पास dp b q और k वही आपके पास कांस्टेंट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किए थे। और k किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस केस में, k would be equal to sigma es sin square sin phi n over 1.4। Here phi is basically the pressure angle, 1 over P plus 1 over G. Here E is the Young's modulus for pinion and G is for the gear. And the pressure angle, normal pressure angle, that is different from the pressure angle simple phi. So phi n जो है that would be equal to tan phi into cos alpha. It is the product of tan of pressure angle and cos of the helix angle. So that is basically your phi n. So this is the first question that is related with all of these terms that we have discussed. So we'll discuss numerical in the next class. I hope you have understand the working principle of the helical gears, and this video would be informative for you. Now we'll see a video that is related with the tooth cutting of the helical gear, कि आपके पास जो है मिलिंग के ज़रिए कैसे जो है हेलिकल गियर जो है वो बनाए जाते हैं। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। नाउ यू विल सी दिस वीडियो।
ये आपके पास शाफ्ट जो है ये इंक्लाइंड है और ये आप देख सकते हैं कि एक टीथ जो है उसकी कटिंग कर रही है। ये आपके पास कटिंग हो रही है एक एंगल के ऊपर, और ये टीथ जो नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे एंगुलरली कटे हुए हैं, ये इंक्लाइंड है आपकी शाफ्ट के एक्सिस। ये आपके पास फुल फॉर्म है, एक टीथ जो है उसकी आपकी कटिंग। ये आपको बता रहा है कि हेलिकल गेयर्स आर नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर, पर गियर जो है यू कैन मेक देम easily. So how you can manufacture helical gears upon a milling? So these are some of the parameters that have to be considered while milling these teeth. अब ये देखें उसने ये बीटा अल्फा ये सारी मशीन के ऊपर आपके पास एंगल्स हैं जिनके ऊपर आपने कटिंग करनी है, एंड देयर आर सम पैरामीटर। ये आपके पास पुरानी एक मिलिंग मशीन है, ये उसके ऊपर अटैचमेंट की जाती थी। ये आपके पास एक पुरानी लेथ दिखाई गई है, उसके ऊपर टीथ की कटिंग हो रही है। ये क्रॉस टेबल है, इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप टेबल को टिल्ट कर दें। ये आपके पास इसके जॉज हैं, स्पेंडल है इसका, और ये आपके पास बेसिकली हॉब है या गियर कटर है जो यूज़ हो रहा है फॉर द कटिंग ऑफ गियर। इसका मॉड्यूल जो है दैट इज़ 2.5। ये पहले उसकी बेस जनरेट कर रहा है, अब ये इसके ऊपर गियर कटिंग हो रही है। ये रैक एंड पिनियन जो है वही मैकेनिज्म आपके सामने है, ये नीचे रैक है और ऊपर उसके पिनियन है, इट कैन मूव अलोंग इट। ये इसके अंदर ड्रिलिंग हो रही है, ये रीमिंग हो रही थी इसकी। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, इसको शैफ्ट के ऊपर जो है वो फिक्स कर रहे हैं और ये ऊपर से लॉक हो गया। अब ये हब के अंदर रोटेट कर रहा है। ये बेसिकली असेंबली बनाई जा रही है, ये पहले असेंबली लगेगी आपकी मिलिंग मशीन के ऊपर और उसके बाद जो है आपके हेलिकल गियर जो है वो बनना शुरू होंगे। तो इट्स बिट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो आप जो है जाके यूट्यूब के ऊपर भी इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। सो आई होप you have understand the lecture, and we'll discuss the numericals in the next class. Thank you so much. बहुत शुक्रिया।